ভকত চরণ রে ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 2490 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ তরঙ্গ, শ্লোকা নম্বর 2490 অনওয়ার্ডস। শচী সুতনাথ শ্রীবাস প্রভু। ব্রহ্ম শিব আদি এ সঙ্গীত প্রচারক। ব্রহ্মা শিব আদি এ সঙ্গীত প্রচারক। এ মহামধুর সর্ব জগতে ব্যাপক। ये महामधुर सर्व जगते व्यापक। तो ये संगीत वेद जो है, ये इसको कौन कौन फैलाया, प्रचार किया? ब्रह्मा शिव आदि ये संगीत प्रचारक, ये संगीत पंचम वेद जो है ना, इसका प्रचार किया। और ये सुमधुर सर्व जगते व्यापक, ये बहुत फेमस है संगीत वेद। एक्चुअली सच बात बताओ तो मैं पहली बार इसका नाम सुना कल। संगीत वेद आप लोग मालूम था? संगीत वेद नहीं प्रभु जी नहीं। एनीवेज, यहाँ तो लिखा है पूरा सर्व जगते व्यापक। व्यापक माने एकदम फैला हुआ है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, प्रचार हो गया। तो पहले तो ये सुने थे पंचम वेद मतलब भागवतम। हाँ, ये हम लोग भी सुने हैं प्रभु जी, पंचम वेद भागवतम को कहते हैं। वही हो सकता है, संगीत वेद उसी के बारे में बोला जा रहा है, हो सकता नहीं, लेकिन यहाँ वो होने से कनेक्शन रहता है वैसा कुछ। है, देखते हैं। तथा ही फिर से वही गोपाल चंपू से लिया गया। ब्रखेश नंदी भरत नंदी भक्त दुर्गा नारद को हला। दुर्गा नारद को हला। दशस्व वायु रंभा। दशस्व वायुरंभा। दशस्व वायु रंभाद। दशस्व वायुरंभाद। संगीतस्य प्रचारका। संगीतस्य प्रचारकः। यस, আমি একটা একটা করে পড়ছি, আপনি ওটা ব্র্যাকেটে যে লেখা আছে ওটা বলুন। ठीक है। ब्रह्मा ईश महादेव। ठीक है, ब्रह्मा ईश माने महादेव। ब्रह्मार ईश्वर माने दोनों अलग अलग है, ब्रह्मा जी और महादेव। महादेव माने ईश माने महादेव है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा ईश अनुवाद में आया ना ब्रह्मा शिव। नंदी 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 ब्रह्मा नंदी। नंदी হচ্ছে মনে হয় महादेव। नंदी महादेव वाला नंदी। महादेव ब्रह्मा ईश्वर क्यों आएगा? ब्रह्मा ईश्वर माने কি? ঈশ্বর না প্রভু तो জি, ये महादेव परे ঈশ্বর বলতে शिवी है। মহাদেব কি বলেছেন? একজন বলুন, महादेव को लिए। কালিন্দী মাতাজি বলুন। হ্যাঁ প্রভুজি, পরের তো অনুবাদই আছে, ব্রহ্মা শিব নন্দী ভরত। হ্যাঁ, তো মহাদেব কোন শব্দটিতে মহাদেব বোঝা যাচ্ছে? ঈশ ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে মহাদেব। प्रभु जी ईश्वर पाশে ব্র্যাকেট দিয়েছে মহাদেব বলে। হ্যাঁ, কেন দিয়েছে ওটাই তো জিজ্ঞেস করছি। পরে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে পরে তিনজনের নাম আছে, মহাদেব, ব্রহ্মা, শিব, নন্দী। যা প্রশ্ন করছি সেই উত্তর দেওয়া হচ্ছে না। বাকি সব এগুলোকে বলে বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ। এই জন্য দিয়েছে যে ঈশ বলে কেউ মানে মহাদেব কেউ বলা যায়, এটা বুঝে নি। বাহ, বুঝে নিন। হ্যাঁ, এটা বলে বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ। এটা আমরা দেখি কখনো হয়তো দোকানে গিয়ে বলে 10 টাকা কম হবে, 500 টাকা বলে 10 টাকা কম হবে। না না, দেখুন জিনিসটা খুব ভালো, এটা পাবেন না কিন্তু, এটা 10 টাকা কম হবে কি, জিনিসটা নিয়ে যান, এরপর কিন্তু আর পাবেন না, এই একটা লাস্ট পিস পড়ে আছে। এটাই হয়। যেটা জিজ্ঞেস করছেন সেটার উত্তর দেন, দিস ইজ কল্ড বিটিং অ্যারাউন্ড দ্য বুশ। আমি জিজ্ঞেস করছি ইস কোন শব্দ দিয়ে মনে হচ্ছে যেটা মহা, ওটা বলা হচ্ছে। এনিওয়েজ, নন্দী ভরত দুর্গা নারদ কোহল দশাস্য মানে রাবণ, বায়ু বায়ুদেব হবে, রম্ভা এতৎ প্রভৃতয় এক্সেট্রা হবে নাকি, সঙ্গীতস্য প্রচারকা বিদিতা ইথার্থ। ব্রহ্মা নন্দী ভরত, ভরত মানে কি হবে? ভরত মহারাজ, ভরত মহারাজই হবে হয়তো। দুর্গা নারদ কোহল, কোহল মানে কে? कोहला। কোহল মানে কে? সব বুদ্ধিজীবীরা বলুন। নারায়ণ গোচাই প্রভু, উঠাই উनको। কে কোহল মানে কে? কেউ জানে না।
ওকে, রাবণ, বায়ু, রম্ভা প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রচারক বলিয়া বিদিত। ও মানে সঙ্গীত বেদের प्रचारक इन लोग ने फैलाया, रावण भी फैलाया। अरे वेरी नाइस। अगला श्लोक, সঙ্গীত স্বরূপ গীত বাদ্য নৃত্য ত্রয়। সঙ্গীত স্বরূপ গীত বাদ্য নৃত্য ত্রয়। গীত বাদ্য দয়ে কেহ সঙ্গীত কহয়। গীত বাদ্য দয় কেহ সঙ্গীত কহয়। तो ये जो संगीत वेद है, संगीत स्वरूप गीत वाद्य नृत्य त्रय, ये गीत वाद्य नृत्य संगीत स्वरूप एकदम संगीत जैसा ही है। इसमें गीत माने ट्यून, वाद्य माने वाद्य यंत्र होते पारे म्यूजिक, एंड डांसिंग सब कुछ होता है। गीत वाद्य द्वय के हो संगीत कहा है। गीत वाद्य इसके लिए उसको कोई संगीत ही बोला जाता है इनको, ये संगीत वेद को। गीत नृत्य वाद्येर प्रभाव अतिशय। গীত নৃত্য বাদ্যের প্রভাব অতিশয়। देव मनुष्यादि सर्वचित्त आकर्षय। দেব মনুষ্যাদি সর্বচিত্ত আকর্ষয়। तो ये डांसिंग कीर्तन, ये जो संगीत वेद का इतना अच्छा है कि देव मनुष्यादि माने देवता मनुष्य आदि सब बहुत आकर्षण पाता है ये संगीत वेद से। সর্ব- और इसके बारे में कहा लिखा है, तथा ही इसलिए संगीत परिजाते, संगीत परिजाते মানে पारिजाते, संगीत पारिजाते की कोनो বই হবে নাকি? एनीवेज उसमें क्या लिखा है, गीत वादित्र नृत्यानां গীত বাদিত্র নিত্যানাং त्रयं संगीतमुच्यते। স্বয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। गीत शास्त्र प्रधान तत्त গীত শাস্ত্র প্রধানা তত্তৎ संगीत मितिरितम। সঙ্গীতমিতিরিতম। श्री संगीत परिजाते पारिजाते सॉरी, इसमें क्या लिखा है, गीत वाद्य नृत्य এই তিনের সমষ্টিকে সঙ্গীত বলা হয়। কালকে আমরা চর্চা করছিলাম না সঙ্গীত আর গীতের মধ্যে তফাৎটা কি। তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্য বশত উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত। ওকে, তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্য, তো গীত বাদ্য আর নৃত্য তিনটে মিলে সঙ্গীত হয়, কিন্তু এই তিনজনের মধ্যে প্রাধান্য কে? সুভাষ বাবু? গীত, কীর্তনটা কিন্তু প্রাধান্য। যেটা গাওয়া হয়। गीते प्राधान्य बशत उहारे संगीत बोलिया कथित, इसलिए संगीत बोला जाता है संगीत वेद, क्योंकि गीत गानटा से बेशी प्राधान्य माने दैट इज मे बी 80%, बाकी 5-10% से कुछ है। गीत के द्वारा भगवान का गुणगान होता है, इसके लिए वो प्रधानता दे। वो तो लिखा नहीं है इधर। আপনি যখন গান করবেন তার সুরটাও প্রাধান্য দেয় গলার সুর। कीर्तन में मैक्सिमम तो माने मेन तो है जो वॉइस, बाकी तो एंसिलरी है। प्राइमरी क्या है? হ্যাঁ, प्राइमरी primary तो गायकेर गलाटा है মানে আওয়াজটা। আওয়াজ। यस, पंकज है तो वजिष्ठ प्रभु। গলার ভয়েস, আপনার গলার সুর। हरे कृष्ण बाबू जी। हम्म। जैसे अभी भी जैसे कोई संगीत प्रोग्राम कोई मेंशन होता है तो संगीत प्रोग्राम में ये तीनों चीज रहता है। लेकिन संगीत program संगीत बोलेगा। शब्द में गीत प्रमुख आया है क्योंकि इसमें गीत का ज्यादा इम्पोर्टेंट। यस, सुमना गौरंगी माता जी। अगला श्लोक, प्रभु गीत में और संगीत में क्या अंतर है? ये तो बताया ना, संगीत में 3 चीज है, गीत, दूसरा है वाद्य, वाद्य माने म्यूजिक, नृत्य डांस। ठीक है, अगला श्लोक। हाँ बोलिए। गीत का 3 पार्ट है, 3 पार्ट मिला के संगीत होता है और गीत अकेला ही है। श्री संगीत शिरोमणि, उसमें क्या कोई बुक है शायद, उसमें क्या लिखा है देखते हैं। गीतं वाद्यंच नृत्यंच গীতং বাদ্যঞ্চ নিত্যঞ্চ एयं संगीतमुच्यते। ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। ত্রয়ং त्रयं गीत वाद्ये उभे एव গীত বাদ্যে উভে এব संगीत मितिके चन সঙ্গীতমিতি কেচন। तत्तिजं नर देवादि मनोहरि
তত্তীর্যং নরদেবাদি মনোহারি মনোহারি প্রকৃতিতম। মনোহারি প্রকৃতিতম। अनुवाद। श्री संगीत शिरोमणिते, ये कोई बुक होगा, उसमें लिखा है गीत, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি তিনটিতে সঙ্গীত বলিয়া কথিত। গীত ও বাদ্য এই দুইটি সঙ্গীত এই रूपो केह केह बोलिया था। कोई बोलते हैं ये दो जन से ही हो जाते संगीत, डांसिंग नहीं रहने से भी म्यूजिक एंड सॉन्ग होने से ही संगीत हो जाएगा। এই संगीत पशु पाखी पक्षी मनुष्य देवता प्रभृति चित्तहारी बोलिया प्रसिद्ध। ठीक है, इन सबका चित्त हरण करता है। समझ में आ रहा सबको? अगला श्लोक। मार्गोदेशी भेदेशे संगीत द्वि प्रकार। मार्गदेशी भेदेशे संगीत द्वि प्रकार। स्वर्गे मार्गश्रित ब्रह्म आचार्य जाहार। स्वर्गे मार्गाश्रित ब्रह्म आचार्य जाहार। नाना देश भेदे देशी भूतल आश्रित। नाना देश भेदे देशी भूतल आश्रित। मार्गदेशी दय হইছে শাস্ত্রে সুবিদিত। मार्गदेशी दय হইছে শাস্ত্রে সুবিদিত। তথা হি শ্রী সঙ্গীত সারে লেখা আছে মার্গদেশী বিভেদেন मार्गदेशी विभेदेन সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা। गीतं भवति द्विधा। স্বর্গে মার্গশ্রিতং দেশ स्वर्गे मार्गाश्रितं देशा শ্রীতং ভূতল রঞ্জিতম। श्रितं भूतल रंजितम। শ্রী সঙ্গীত সারে उसमें क्या लिखा है? मार्गो और देशी এই দুই भेद क्रमे संगीत दुई प्रकार। ओके, अभी संगीत जिसके पेट में तीन चीज है ना, मालूम है ना हम लोग को संगीत क्या क्या है? Okay. तो संगीत दो प्रकार के हैं, मार्गो और देशी। मार्गो भेदानुसारी संगीत स्वर्गे अवस्थित। ओके, मार्ग संगीत कहाँ अवस्थित? भेद अनुसारी संगीत स्वर्ग में। देशी भेदानुसारी संगीत एक भूत लोकेर आनंद प्रदाता। ठीक है, हम लोग को देसी और स्वर्ग में क्या है? मार्गो। ठीक है जी, अभी देसी से चलाइए काम। ओके, यस इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ গুরুজি, আমরা গানের যখন থিওরি পরীক্ষা দিতাম তার মধ্যে মার্গীয় সঙ্গীত, দেশি সঙ্গীত সব থাকতো, মানে বুঝতাম না, এখন বুঝতে পারছি। हरि बोल हरि बोल। अच्छा, तो वो मार्ग में तो जाना ही नहीं है। हाँ आप देसी से चलाइए। ठीक है, देसी के बाद सीधा भगवान का धाम। एकदम। तो दूसरा कोई सोच रहा देखिए इस्कॉन में फिर देसी अलाउड है क्या? अभी उसका गलत फायदा मत उठाइएगा। ठीक है, यस तो बोलिए। दूसरा संगीत क्या है? देसी देवी गुण तो एक्वायर करना पड़ेगा ना, डिवाइन क्वालिटीज, तो ये भी एक डिवाइन क्वालिटी है। वो वाला फ्लाइट नहीं मिलेगा तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, मार्ग में ही जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल देसी से काम चलाइए। ठीक है, अगला श्लोक। श्री संगीत पारी जाते, उसमें और भी कुछ दिया हुआ है। दूसरा संगीत है, पहला देसी है, दूसरा मार्ग है। मार्ग तो मैंने जो देवता लोग स्वर्ग में कीर्तन करते हैं वो गंधर्व लोग। हाँ, और इधर जड़ जगत में हम लोग का भूलोक में देसी। ठीक है, मैंने संगीत को देसी से जाना जाता है। मार्गदेशी विभेदेन मार्गदेशी विभेदेन वेदा संगीतमुच्यते। वेदा संगीतमुच्यते। वेद मार्ग खा संगीतं। वेद मार्गाख संगीतं। भरताया ब्रवीत स्वयं। भरताय ब्रवीत स्वयं। ब्राह्मणोः धित भरत। ब्रह्मणः धित भरत। संगीतं मार्ग संगीतम्। संगीतं मार्ग संगीतम्। अप्सरोभिश्च गन्धर्वै। अप्सरोभिश्च
ইশ্চ গন্ধর্বৈ সম্ভবরগ্রে প্রযুক্তবান সম্ভর অগ্রে প্রযুক্তবান তদ্দেশীয়মিতি প্রাহু তদ্দেশীয়পি মিতি প্রাহু সঙ্গীতং দেশভেদতঃ। संगीतं देशभेदतः। श्री संगीत पारिजाते उसमें क्या लिखा है? मार्गो और देशी भेदे संगीत द्विविधो, दो प्रकार का है मार्ग और देशी, वो तो हम लोग को मालूम है। ब्रह्मा स्वयं भरत के मार्ग संगीत उपदेश करिया छिलेन। ये भरत कौन हो सकता है? भरत महाराज हो सकता है। तो उनको क्या सिखाया था, उपदेश क्या किया था? मार्ग संगीत के लिए। कौन? ब्रह्मा जी उनको उपदेश दिया था। ठीक है। भरत ब्रह्मार निकट मार्ग संगीत शिक्षा करिया अप्सरा और गंधर्व गण द्वारा महादेवेर सम्मुखे उहा प्रयोग करिया छिलेन। ठीक है। अभी भरत की कौन मालूम नहीं है। ये सब सीखकर वह शिव जी के सामने ये सब कीर्तन किया। क्या? कौन सा वाला? मार्ग संगीत। संगीत देश भेदे সেই দেশীয় বলিয়া কথিত হয়। संगीत देश भेदे, देश माने स्वर्गलोक, माने देश माने स्थान के हिसाब से दो प्रकार किया है। ठीक है। देश भेद, कैसे भेद किया है संगीत को? देश के अनुसार, स्थान के अनुसार। स्वर्ग में होगा तो उसको हम लोग मार्ग बोलेंगे, भूलोक में होगा तो उसको देशी बोलेंगे। अगला श्लोक। गीतादिर उत्पत्ति कारण नाद হয়, गीतादिर उत्पत्ति कारण नाद হয়, नाम स्वयं हरि नाद तत्व की जानय, नाम स्वयं हरि नाद तत्व की जानय, न नादेन बिना गीतं, न नादेन बिना गीतं, न नादेन बिना स्वर, न नादेन बिना स्वरः, न नादेन बिना राग, न नादेन बिना रागः, तन्मन्नादात्मकं जगत्। तस्मान्नादात्मकं जगत्। नाद ব্যতীত গীত স্বরজাদি স্বর ও রাগ রাগিনী হয় না, অতএব এই জগৎ নাদময়। तो ये नाद ব্যতীত आवाज को वो जो হ্যাঁ, শব্দকে নাদ বলে। স্বরজাদি স্বর ও রাग रागिनी হয় না। सो ये आवाज के बिना गीत नहीं होता है। স্বরজাদি মানে স্বর মানে 6টি स्वर, स्वरजादी स्वर, स्वर माने स्वर भी स्वर भी 6 प्रकार का होता है। और राग राग প্রভুজি সা থেকে নি, সা থেকে নি, सारे गाम आधा नी সাতটা থাকে তো স্বর। স্বর মানে তো 6। साप्ताह है। হ্যাঁ, এখানে 6টা বলছে। এনিওয়েজ যাই হোক, অতএব এই জগতে नादमय, এই জগৎ नादमय माने इस जगत में नाद है। नाद के बिना संगीत नहीं हो सकता। ठीक है। শ্রী সঙ্গীত দামোদরে, ये कोई बुक है? এটা কি পরীক্ষা দিয়েছিলেন নাকি? এটা এই বইটা এসেছিল সিলেবাসে? সঙ্গীত দামোদর। ছিল প্রভুজি, অনেক কিছু ছিল। अच्छा, तो उसमें क्या लिखा है? नादेन बिना ज्ञानेन ज्ञानं न, नादेन बिना ज्ञानं न, नादेन बिना शिव, नादेन बिना शिवः, नादरूपं परं ज्योति, नादरूपं परं ज्योति, नादरूपी स्वयं हरि। नादरूपी स्वयं हरि। श्री संगीत दामोदरे उसमें क्या लिखा है? नाद तत्व ব্যতীত তত্ত্ব জ্ঞানের পৃথক সত্তা নাই, নাদ জ্ঞান ব্যতীত শিবকে জানা যায় না, জ্যোতি স্বরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরিও नाद रूपी বা শব্দ ব্রহ্ম স্বরূপ। ओके, विदाउट साउंड इन लोग को जान नहीं पाएंगे। ब्रह्मा शिव इन लोग को यू कैन नॉट नो देम। या मैंने यही जिस्ट है। यस पंकज प्रभु। तो पिछला श्लोक से क्वेश्चन है। कौन सा नंबर श्लोक? ये 2503 है सर। हाँ हाँ बोलिए। ये गीतादि उत्पत्ति कारण नाद है। यहाँ गीता मतलब गीता तो नहीं है ना? नहीं संगीत माने संगीत बोलना भी कोई गलत है। अभी संगीत और गीत में भी गीत आदि, गीत हाँ। प्लस आदि, म्यूजिक हाँ। एक्सेप्ट है ना, इट इज नॉट अबाउट भगवत गीता। गीत देखिए, अभी वो भी नहीं बोलना गलत हो गया, क्योंकि वो भी बोल सकते हैं। भगवत गीता भी तो गीत
ट्यून में ही है ना, गीतोपनिषद। इट इज यहाँ स्पेशली वो देखें। भगवत गीता तो यहाँ उल्लेख नहीं है, तो हमको बोलना ठीक नहीं होगा, हो सकता है आगे वो आए। दूसरी बात है, हमको मालूम है ना कि भगवत गीता को गीतोपनिषद बोला जाता है, क्योंकि ये गीत माने ट्यून में है भगवत गीता का। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति, ऐसे करके ट्यून में है। तो इसीलिए इंग्लिश में बोलता है इसको द सॉन्ग्स ऑफ द भगवत, ऐसे कुछ बोलता है। किसी को मालूम है अंग्रेजी में क्या बोलता है भगवत गीता को? द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, ऐसे आपको याद है? किसी को मालूम है अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? द सॉन्ग ऑफ द समथिंग कुछ भगवत गीता को। यस, बोलिए सत्यभामा माता वो जी। हिंदी में तो गीतोपनिषद बोलते हैं। हाँ तो मालूम है वो। यस, बोलिए सत्यभामा माता जी। पर वो 2503 थोड़ा सा समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा। ये तो बोला है कि नाद व्यतीत तो गीत, नाद व्यतीत तो ये नाद कोई ये नहीं, गीत नहीं हो सकता है। ये जब माने जगत स्वर के बिना गीत नहीं हो सकता है। स्वर हाँ, जितना भी इस जड़ जगत में सॉन्ग है सब नाद है, उसमें नाद है। ठीक है, सुचारू गोपी माता जी। नाद मतलब आवाज। नाद मतलब आवाज, नाद मतलब आगे तो PDF ग्रुप में डाल। नाद में लिखा है शब्द ब्रह्म स्वरूप, शब्द साउंड बोल सकते हो, नथिंग। हाँ बोलिए सुचारू गोपी माता जी। मुझे आगे का PDF ग्रुप में डाल दीजिए 501 का बात। मैं तो कल भेजा था। डाला हुआ। ठीक है फिर। अगला श्लोक, अज्ञनेयो नादादेस्त परं पारं, बोलुन नादास्तिस्तु परं पारं जानाति सरस्वती न जानाति सरस्वती तथापि मज्जन भया अद्यापि मज्जन भया तुष्यं बहति बक्षसि। तुस्सं बहति बक्षसि। हनुमंते, ये कोई बुक होगा, उसमें क्या लिखा है? सरस्वती और नाद समुद्रेर परपार एखोनो पहुंचते पारे नाई। ओके, सरस्वती देवी भी नाद समुद्र का, माने ये शब्द समुद्र के पूरा ज्ञान उनको आया नहीं, ये समझ में आ रहा है, माने उसको क्रॉस नहीं कर पाई अभी तक। सरस्वती देवी और नाद समुद्रेर पारापार एखोनो पहुंचते पारे नाई, ताई मतलब नाद के स्वर को बोल रहे हैं। शब्द बोला तो, अभी बोला तो शब्द समझ में आया। नाद माने शब्द, शब्द ब्रह्म लिखा है लास्ट, नाद रूपी महा शब्द ब्रह्म। ओके, साउंड। तो she also has not been able to capture 100%, পার নেই हो पाया। তাই এই ওই সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ভয়ে বক্ষে বিনার তুম্ব বহন করিতেছেন। ओके, उसीलिए वो समुद्र को क्रॉस करने से डर से, वही समुद्र निमग्न हुईबार भय माने डूब जाने के डर से उन्होंने क्या कैरी किया? चेस्ट में बीना कैरी किया। बीनार तंबू, तंबू क्या होता है किसी को मालूम है? तुम्ब मतलब उसमें जो फूला हुआ जो पोर्शन रहता है ना बिना का, वो फुला हुआ घड़े बना। जैसा। ओके, फिर उसको डूबने नहीं देगा समुद्र में। करेक्ट, बहन कोरिया আছে। इस सरस्वती जी का बारे में बोल रहे हैं। हाँ, और किन के बारे में? सरस्वती तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती सोचा क्या आपने? बिना बाधिनी वही को है। एनीवेज, आप में से किनको किनको बिना आता है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसी को नहीं आता है? अगला श्लोक, नादेर उत्पत्ति अग्नि वायु হইতে হয়, नादेर उत्पत्ति अग्नि वायु হইতে হয়, आकाशादि वायुते से नाद जन्मय। आकाश आदि वायुते से नादो जन्मय। ये तो हम लोग को मालूम है, क्योंकि हम लोग जब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश किया था, एक एक को लिंक किया था पांचों चीज में। पृथ्वी से मिट्टी, याद है? पृथ्वी जल, जल से कुछ था, अग्नि ये साउंड था, साउंड का आकाश से था, हमको याद है। सो नादेर उत्पत्ति अग्नि वायु হইতে হয়, आकाश आदि वायुते से नाद जन्माय। तो नाद जन्माय कहाँ से? आकाश आदि वायुते।
जन्म लेता है साउंड। विदाउट एयर देयर विल बी नो साउंड। नादेरो उत्पत्ति स्थानो नाभि अधो देशे, বলুন বলুন। নাদের উৎপত্তি স্থান নাভি অধোদেশে। নাভি ঊর্ধ্বেব ভ্রময় মুখে ব্যক্ত হয় শেষে। নাভি ঊর্ধ্বে ভ্রমি মুখে ব্যক্ত হয় শেষে। तो साउंड कहाँ से? पेट से निकलता है। बोलता है ना पेट से गाओ, एकदम बोलता है ना, आप सुना है ना, गाना पेट से क्यों गाओ? तो उत्पत्ति कहाँ है? पेट से। नाभि नीचे, माने पेट बोलना ठीक नहीं है, नाभि नीचे। क्या लिखा है? नाभिर उत्पत्ति स्थान नाभिर अधोदेशे। अधोदेशे माने नाभि नीचे, ठीक है। और नाभि ऊर्ध्व भ्रमी मुखे व्यक्त है शेषे। वो नीचे से, नाभि के नीचे से आस्ते आस्ते साउंड आकर मुंह से व्यक्त होता है, निकलता है। बोलिए ना शुक्र। यस माता जी। लेकिन प्रभु यहाँ पे ये जो लाइन है ऊपर वाला, अग्नि वायु होते होय, अग्नि वायु मतलब क्या हुआ? ये अलग अलग प्रकार का वायु है। नादेर उत्पत्ति अग्नि वायु होते है। अभी नाद साउंड का उत्पत्ति कहाँ है? अग्नि वायु कहाँ है? पेट में है, जठर अग्नि। इफ यू सी, वहां से उत्पत्ति स्टार्टिंग। और आकाश आदि वायु से नाद जन्म है। लेकिन बाहर जब निकलता है साउंड तब निकलता है ना, जब मुंह से निकलेगा तो आकाश आदि वायु, अग्नि वायु से निकल उत्पत्ति होता है, स्टार्ट होता है। खत्म कहाँ होता है? जब हम साउंड बोलेंगे तो आवाज आएगा, उसके लिए साउंड, ये आकाश चाहिए। बिना आकाश का साउंड निकलेगा नहीं। क्या मैं समझा पाया? ओके प्रभु। आकाश का दूसरा नाम भी शब्द ही होता है। नाद, হ্যাঁ বলুন। নাদোৎপত্তি প্রকারেরও ঋত বহু হয়। নাদোৎপত্তি প্রকারেরও ঋত বহু হয়। কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয়। কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয়। नादोत्पत्ति प्रकारेर ऋत बहु है। नादोत्पत्ति माने स्टार्टिंग, उत्पत्ति का स्थान, या क्या बोल रहे मालूम नहीं, ये बहुत टाइप का होता है। केह केह नादोत्पत्ति अल्पे निरूपय, बहुत अल्प से, केह केह कुछ कुछ व्यक्ति अल्पे निरूपय। निरूपय माने की होवे? प्रकाश करते हैं क्या? ऐसे कुछ होगा। अभी देखते हैं अगला श्लोक में, और इसको कोई सपोर्टिंग दे रहा है, उसमें और क्लियर हो जाएगा अगला श्लोक पढ़ने से। तो वो ऊपर वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन कौन सा लाइन? वही नाद उत्पत्ति प्रकारे ये तो अभी बताया। आप सुनते नहीं है, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू समथिंग एल्स। आई जस्ट स्पोक अबाउट दैट। नहीं सुन रहे हैं प्रभु, नहीं समझ में आया। वही तो मैं बोला, नाद उत्पत्ति प्रकारे ऋतु बहु है। नाद का जो उत्पत्ति, साउंड का जो स्टार्टिंग उत्पत्ति, उसका भी बहुत प्रकार माने बहुत कैटेगरी होता है। नाद उत्पत्ति प्रकारे ऋतु बहु है। नाद केहो केहो नादोत्पत्ति अल्पे निरूपय। अल्पे निरूपय बहुत इजी से निरूपय प्रकाश करते, ऐसे कुछ दिखते हैं। अभी अगला श्लोक पढ़ने से ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक सपोर्टिंग दिया हुआ है। तथा ही संगीत सारे, उसमें क्या लिखा है बुक में? नकार प्राण वायु शब्द, आकारः प्राण वायु शब्द। कारो हब्ब वाहन। कारो हब्ब वाहनः। ताभ्यामुत्पद्यते यस्मात्। ताभ्यामुत्पद्यते यस्मात्। मन्नादोहय मुच्यते। मन्नादयः मुच्यते। तभ्यं प्राणाग्निभं तभ्यं प्राणाग्निभं तभ्यं प्राणाग्निभ्यं जातो नादो इत्यर्थो। जातो नाद इत्यर्थः। श्री संगीत सारे, उसमें क्या लिखा है बुक में? नकारेर अर्थ प्राण वायु, दकारेर अर्थ अग्नि। ये अलग अलग जो आया था ना, अग्नि वायु प्राण वायु, वही যেহেতু এই দুই হইতে উৎপন্ন হয়, সেই জন্য ইহা নাদ বলে। ও ये অর্থাৎ अलग चीज है फिर। नाद या अलग चीज है। नाद प्राण ও अग्नि হইতে উৎপন্ন, ठीक है। तो साउंड प्राण ও अग्नि। प्राण क्यों? क्योंकि नौ आकार दो, तो नौ प्रभु ये प्राण वायु और ये वायु तो
हृदय के पास में रहते हैं ना, प्राण वायु, बोले ना आत्मा को ये 5 प्रकार की वायु घेरे रहती है। हाँ, लेकिन साउंड के लिए ये 2 वायु दरकार है। अभी 5 प्रकार के वायु में प्राण वायु तैरते हैं, वो जो आत्मा है वो प्राण वायु के ऊपर तैरते रहते हैं। तो वो इसमें बोला ही हुआ है, वायु का कई प्रकार होते हैं, जैसे प्राण, अपान, समान सब वायु होते हैं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका जो ऊपर अनुवाद के ऊपर जो अन्वय है बंगाली में, उसमें अलग कुछ दिया है। बाप रे बाप, उसमें मत जाइए। आप पीएचडी स्कॉलर है, वो सिर्फ आपके लिए दिया है, स्पेशली लिख भी दिया। देखिए ये पंकज प्रभु के लिए, वो हम देख के हट गया, उसको मैं गया ही नहीं। ठीक है, हम इसलिए अनुवाद में डायरेक्ट गया उसका। ओके, अगला श्लोक। पर वो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो वो हिंदी में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, संस्कृत का जितना श्लोक है कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अभी आप समझ में आ रहा है क्यों बंगाली पढ़ा रहा था? अभी समझ में आ रहा है? तो हिंदी में तो नहीं बोले प्रभु, उसका श्लोक का तो नीचे में जो लिखा हुआ अनुवाद उसको हिंदी में थोड़ा बोलिए ना। हम क्या अभी क्या उड़िया में बोल रहा था इतना देर? हिंदी में तो ये नौकारेर अर्थ नौद, नौद हम लोग बोलते हैं नौद। तो नौ कहाँ से आया? प्राण वायु। द कहाँ से आया? अग्नि वायु। ये 2 मिलाकर नाद होता है। नाद माने साउंड, माने साउंड के लिए अग्नि वायु और प्राण वायु दोनों जरूरी है। ठीक है, अर्थात नाद प्राण और अग्नि হইতে उत्पन्न। प्राण और अग्नि, অগ্নি পেট থেকে আসবে, প্রাণ বায়ু মুখ থেকে বেরোলে আকাশ থেকে আসবে, মানে আকাশে পৌঁছলে আওয়াজটা সাউন্ডটা বেরোবে। उसीलिए वैक्यूम में कोई साउंड नहीं होता है, मालूम है? अगर कोई वैक्यूम, आपको सोचिए आपको कोई वैक्यूम बक्सा में बंद कर देंगे, आप जितना भी चिल्लाइएगा कोई आवाज निकलेगा ही नहीं, बिकॉज वैक्यूम कंटेन्स नो एयर। विदाउट एयर देयर इज नो साउंड। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए ये जो फिजिक्स हम लोग ने पढ़ा था, एयर जरूरी है, उसीलिए वैक्यूम में कोई साउंड नहीं होता। अगला श्लोक। श्री संगीत टाइम है क्या? मुक्ता बल्लांग, ये लास्ट वाला यही करते हैं। उसमें क्या लिखा है? आकाश अग्नि मरुजातो, आकाश अग्नि मरुजात नाभेरुद्धं समुच्चरन्, नाभेरुद्धं समुच्चरन्, मुखे हब्धि व्यक्ति मायाति, मुखे अभिव्यक्ति मायाति, दश नाद प्रकीर्तित, जश नादः प्रकीर्तितः। श्री संगीत मुक्ता बोलिते, ये बुक में क्या लिखा है? जहां आकाश अग्नि वायु হইতে उत्पन्न হইয়া नाभिर ঊর্ধ্বস্থানে विचरण पूर्वक मुख्य प्रकाशित है, ताहा नाद बोलिया कथित। ठीक है, ये तो समझ में आया। जो जहां आकाश अग्नि वायु হইতে उत्पन्न হইয়া नाभिर ঊর্ধ্বস্থানে विचरण पूर्वक मुख्य प्रकाशित है, तो नाभि से, नाभिर के ऊर्ध्वस्थान, ऊर्ध्व नाभि से नीचे से, जठराग्नि से, वहां से उत्पन्न हुआ और मुंह से प्रकाश हुआ, उसको क्या बोला जाता है? ताहा नाद बोलिया कथित। ठीक है, हमको तो लग रहा है कि राघव पंडित जी साइंस क्लास दे रहा है। इनको नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्रीनिवास आचार्य का भी साइंस क्लास चल रहा है। ओके, साइंस ऑफ साउंड, फिजिक्स क्लास चल रहा है। यस, एखाने रहिल ग्रंथ अमृतल हरि, सभी बोलो हरि हरि। हरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।